Students, today we are going to start a third unit, that is electrochemistry. Okay, so we will discuss about what is electrochemistry, how a electrochemical cell and electrolytic cell works. Okay, so now we move on to our next unit, that is electrochemistry. So, what is electrochemistry? This is the most important thing. Electrochemistry refers to the conversion of chemical energy to electrical energy and vice versa. Means what? Electrochemistry means electricity and chemical. Means what? अगर आपने केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करना है या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल चेंजेस प्रोड्यूस करने हैं, उसको आप बोलते हो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. ये वाइस वर्सा मतलब भाई उसका बिल्कुल उल्टा. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री रेफर्स टू द कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी टू chemical changes. It is basically the study of production of electricity from energy released during spontaneous reaction and use of electric energy to bring about non-spontaneous chemical transformation. You have heard about dry cells, बैटरी जो हम यूज़ करते हैं अभी, जो वॉच में बैटरी लगती है, ठीक है. That battery is basically working on electrochemical principle, and that electrochemical principle is used for study of production of energy during a spontaneous reaction and use of electric energy to bring about a spontaneous non-spontaneous chemical transformation. So एक spontaneous chemical reaction क्या होती है? The spontaneous chemical reaction, as you know, as the thermodynamics tell us, the reaction which happen by itself, जो अपने आप हो जाती है, which happens by its own and release free energy. This reaction produces electric energy from chemical reaction. For example, burning of coal, rusting of iron, melting of ice. These all are spontaneous chemical reaction. Okay, the reaction which happen by itself is known as spontaneous chemical reaction. On the other hand, non-spontaneous reaction, you need an external source like hydrolysis of water. If we have to do the hydrolysis of water, or simply heating of water, need an external agency, that is heating के लिए आपको burner चाहिएगा या फिर heating plate, whatever you need something for heating. Okay, next we move on to electrochemistry. How we used electrochemistry? Electrochemistry is used for production of metal like sodium hydroxide. सोडियम हाइड्रोक्साइड भी ब्राइन सॉल्यूशन होता है, दैट इज सोडियम क्लोराइड इन वाटर, साल्ट इन वाटर. उसके इलेक्ट्रोलिसिस से प्रोड्यूस होता है. क्लोरीन प्रोडक्शन में, फ्लोरीन प्रोडक्शन में, और बहुत सारे केमिकल्स हैं जिनमें आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का यूज़ करते हो. इट इज़ यूज फॉर प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल. द प्रोसेस इज यूज इन बैटरीज एज वेल एज इन फ्यूल सेल विच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. फ्यूल सेल भी बहुत सारे रिसर्च प्रोग्राम, जो स्पेस रिसर्च प्रोग्राम है, उनमें फ्यूल सेल का यूज़ किया जाता है. और फ्यूल सेल का एक बेनिफिट है दैट दिस कैन यूज़ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, एंड हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस जो यूज़ होती हैं वो मिलके वाटर बनाते हैं. इसीलिए उस वाटर का हम ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए या फिर और किसी पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं. तो फ्यूल सेल इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है. So there are many devices and instruments. There is a process called as electroplating. Electroplating is a process in which जैसे अगर आपको कोई लेयर चढ़ानी है किसी मेटल की दूसरे मेटल पे, से फॉर एग्जांपल जैसे हम गोल्ड की लेयर चढ़ाते हैं सिल्वर पे. सो दिस रिएक्शन और दिस पर्टिकुलर थिंग दैट इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज आल्सो यूज्ड and also related to electrochemistry. The reaction carried out, the process of electrochemistry are एनर्जी इफेक्टिव और लेस पोल्यूटिंग. ये भाई एक तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि वो इकोनॉमिक भी है और पोल्यूशन भी क्रिएट नहीं करते इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाली चीज़ें. नाउ व्हाट इज अ डैनियल सेल? Daniell cell is a cell that can convert chemical energy liberated as a result of redox reaction into electrical energy. इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी 1.1 वोल्ट होता है. तो हाउ इट कैन जनरेट एनर्जी, दिस इज इंपॉर्टेंट. अगर आपके पास एक जिंक इलेक्ट्रोड है और एक कॉपर इलेक्ट्रोड है, और जिंक इलेक्ट्रोड को आपने जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में और कॉपर इलेक्ट्रोड को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, जो ये Zn+2 अभी ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जिंक इन जिंक सल्फेट सॉल्यूशन एज Zn+2 एग्जिस्ट करता है, और कॉपर एज कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में आपका कॉपर+2 एग्जिस्ट करता है. सो जिस टाइम आप इन दोनों इलेक्ट्रोड को वाया वोल्टमीटर, और साल्ट ब्रीज भी इसके अंदर एक केमिकल होता है दैट वी विल डिस्कस इन अवर नेक्स्ट स्लाइड्स.
वोल्ट मीटर जो है उससे अटैच करते हो, तो आपके पास जो Zn+2 है वहां से इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐसे मूव करता है। अब इलेक्ट्रॉन जिस तरफ मूव करता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट मूव करता है। अब पोटेंशियल है, इसका मतलब इसमें कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ करंट रहा होगा। जिस टाइम आपने इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को जोड़ दिया वाया वोल्ट मीटर, देन यू फाइंड आउट दैट देयर हैज टू बी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दैट इज 1.1 वोल्ट। सो दैट मीन्स ये सेल है जिसमें रिएक्शन हो रही है, दैट इज केमिकल रिएक्शन. So Daniell cell is a cell which can convert the chemical energy into electrical energy. Next we move on to what are the setup for Daniell cell. ये भी मैंने डिस्कस करा, पिक्चर्स में दिखाया हुआ था अभी. एक बीकर में एक प्लेट ऑफ जिंक डिप करी जाती है किस सॉल्यूशन में, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में. अनदर बीकर में एक प्लेट ऑफ कॉपर इज डिप्ड इन अ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट इन विच जिंक सल्फेट में जिंक एज जिंक+2 आयन, कॉपर सल्फेट में कॉपर एज कॉपर+2 आयन. These plates of metals are called as electrode of cell. These electrodes behave as terminal to hold the electrons. The two electrodes are connected via wire. A salt bridge is placed between two beakers. This provide a path of movement of ions. अब एक जगह अगर आयंस ज़्यादा हो जाएंगे तो भी वो मुश्किल क्रिएट करेगा, तो जो साल्ट ब्रिज है दैट विल प्रोवाइड अ मूवमेंट ऑफ आयन फ्रॉम वन बीकर टू अदर in order to maintain the electrical neutrality. Zinc electrode get oxidized. Oxidation होता है भाई loss of electron. तो zinc+2 में जाता है और +2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करता है, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है तो वो ऑक्सीडाइज हो जाता है. ऐसे ही आपके पास जो कॉपर है वो क्या हो जाता है भाई, वो रिड्यूस हो जाता है, रिडक्शन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है. द कॉपर सल्फेट रिलीजेस कॉपर+2 आयन. ओके, नेक्स्ट इज एनोड पे क्या रिएक्शन होती है भाई, ऑक्सीडेशन, और कैथोड पे रिडक्शन. जस्ट रिमेंबर दिस इज बाय CR, दैट इज चोटूराम. एंड CR का मतलब है कैथोड रिडक्शन. कैथोड पे रिडक्शन है तो एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन रहेगा. तो ऑक्सीडेशन क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और रिडक्शन क्या है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. जिंक विल गिव यू जिंक+2 इलेक्ट्रॉन. कॉपर+2 क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके कॉपर बना लेगा. Zinc atom being more reactive have a greater tendency to lose electron than that of copper. Zinc ज़्यादा रिएक्टिव है तो वो easily जो है इलेक्ट्रॉन्स को लॉस कर देगा. The electrons in the cell moves from zinc electrode to copper electrode. जहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ वहाँ पे इलेक्ट्रॉन का अमाउंट ज़्यादा रहेगा क्योंकि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है वो जिंक इलेक्ट्रोड से कॉपर इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे. A bulb placed within the circuit will glow and a voltmeter connected within the circuit will show the deflection. अब बल्ब ग्लो करता है, इसका मतलब क्या है कि भाई उसमें कुछ न कुछ अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई है, तो हमने केमिकल एनर्जी का यूज़ करके इलेक्ट्रिक एनर्जी को प्रोड्यूस करा. एक वोल्ट मीटर इसलिए कनेक्ट किया गया ताकि हमें पता चले कितना अमाउंट ऑफ वोल्टेज जो है वो प्रोड्यूस हुआ है. नेट रिएक्शन क्या होगा भाई, जिंक+2 इलेक्ट्रॉन में जा रहा है और कॉपर+2 जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन को घेर करके कॉपर में जा रहा है. इन दोनों रिएक्शंस को आप ऐड कर दोगे फर्स्ट एंड सेकंड को. अगर आपने ऐड करा तो जिंक प्लस कॉपर+2 लेफ्ट साइड, Zn+2 प्लस कॉपर टू द राइट साइड. ओके, सो यू विल गेट जिंक एज जिंक+2 जो ऑक्सीडाइज हो रहा है, कॉपर+2 विल गिव यू कॉपर, दो रिड्यूस हो रहा है. ऑक्सीडेशन भाई इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर भी होता है. ओके, या आपने रेडॉक्स रिएक्शन जो सेकंड बुक है +1 केमिस्ट्री की, वो सबसे पहला चैप्टर उसमें पढ़ा होगा. जिंक है जिंक+2 और कॉपर+2 विल गिव यू कॉपर. नेक्स्ट इज इन Daniell cell a salt bridge is placed between the two beakers containing the solution zinc sulfate and a solution of copper sulfate respectively. So जो salt bridge है वो क्या करता है, this provides a path for movement of ion from one beaker to another beaker to maintain electrical neutrality. Electrical neutrality को maintain करने के लिए movement of ions provide करता है एक beaker से दूसरे beaker में. Next is what is a salt bridge. This is the most important thing because हमने अभी बताया कि salt bridge जो है वो place किया जाता है अभी. So salt bridge is an inverted U-tube like structure. This tube is filled with concentrated solution of inert electrolyte. इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट भी जो रिएक्ट नहीं करते आयंस के साथ. दिस इज इंपॉर्टेंट, अगर वो आयंस के साथ रिएक्ट करेंगे तो और कुछ कंपाउंड बन जाएंगे भी साल्ट ब्रिज के अंदर, विच इज नॉट नीडेड. वो सिर्फ क्या चाहिए हमें, फ्लो और मोमेंट ऑफ आयन चाहिए.
The electrolyte does not undergo any sort of chemical reaction, nor does it react with concentrated solution in half to cell. ना तो कोई रिएक्शन जो है वो इनसाइड द यू ट्यूब जो है साल्ट ब्रिज में होती है, ना ही आउटसाइड. मोस्ट ऑफ द टाइम जो साल्ट यूज होते हैं अभी वो KCl, KNO3, अमोनियम नाइट्रेट आर यूज्ड. KCl, KNO3 और अमोनियम नाइट्रेट. इसमें एक सॉल्यूशन और होता है भाई AzAr, अगर अगर सॉल्यूशन भी बोलते हैं उसे. साल्ट ब्रिज इज कंस्ट्रक्टेड बाय filling the U-tube with a mixture of prepared by mixing agar-agar or gelatin with hot concentrated solution of electrolyte. Okay, that I have discussed. The apparatus is then cooled and consequently the solution fixes within the U-tube to form a gel. इस apparatus को फिर cool किया जाता है, पहले heat करके भी mix किया जाता है हॉट कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट का, उसके बाद कूल किया जाता है और उसकी वजह से सॉल्यूशन फिक्स हो जाता है यूट्यूब में टू फॉर्म अ जेल. दिस प्रिवेंट्स द इंटरमिक्सिंग ऑफ फ्लूइड्स. ये सोडियम सल्फेट जिंक सल्फेट और कॉपर सल्फेट को मिक्स होने से रोकता है. नाउ द आइदर एंड ऑफ ट्यूब आर देन सील्ड यूजिंग कॉटन वूल इन ऑर्डर टू रिड्यूस डिफ्यूजन. दोनों जो साइड्स हैं उनमें से दोनों साइड में से एक साइड जो है कॉटन वूल से सील की जाती है ताकि डिफ्यूजन ना हो. डिफ्यूजन मतलब वहाँ से आयंस बाहर ना जाए साल्ट ब्रिज से. द मेन एडवांटेज ऑफ यूजिंग दिस साल्ट ब्रिज इज दैट इट प्रिवेंट्स द अराउजल ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस कॉल्ड द लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल दैट वी हैव डिस्कस्ड इन आवर नेक्स्ट लेक्चर्स. व्हेन टू सॉल्यूशन आर इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, दो सॉल्यूशन अगर कॉन्टैक्ट्स में होते हैं तो एक पोटेंशियल जनरेट होता है अभी लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल. पोटेंशियल भी मैं डिस्कस करूंगा क्या होता है. पोटेंशियल वैसे किसी भी इलेक्ट्रोड की आयंस को लॉस और आयंस को गेन करने की टेंडेंसी जो है उसे आप पोटेंशियल बोलते हो. इट कंप्लीट द इलेक्ट्रिकल सर्किट एज इट कनेक्ट्स द इलेक्ट्रोलाइट इन द टू हाफ सेल. ये इलेक्ट्रिकल सर्किट को कंप्लीट करता है. इट अवॉइड द चांसेस ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सॉल्यूशन बिटवीन द हाफ सेल्स. दोनों हाफ सेल्स में जो डिफ्यूजन हो सकता था सॉल्यूशंस का उसको रोकता है. इट मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बाय प्रोवाइडिंग ए पाथ फॉर मूवमेंट ऑफ आयंस. ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है बाय प्रोवाइडिंग ए पाथ फॉर मूवमेंट ऑफ आयंस. दिस इज लाइक बहुत बारी क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट आर एडवांटेजेस ऑफ साल्ट ब्रिज. और साल्ट ब्रिज में कौन कौन से सॉल्यूशन होते हैं. KCl, KNO3, अमोनियम नाइट्रेट और अगर अगर हो सकता है अभी. इसके अलावा जो मेन एडवांटेजेस में है वो ये है कि वो लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को रोकता है, इलेक्ट्रिकल सर्किट को कंप्लीट करता है, डिफ्यूजन नहीं होने देता सॉल्यूशंस का और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है. ओके, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट. इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करता है बाय प्रोवाइडिंग अ पाथ फॉर मूवमेंट ऑफ आयंस. नेक्स्ट इज हाउ वी कैन मेजर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इन ए सेल. कितना पोटेंशियल जो है एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड का है उसको आप कैसे मेजर करते हो. सो उसके लिए इलेक्ट्रोड को एक स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है वो बनाई जाती है. इलेक्ट्रोड को एक स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो हमने बनानी है उसके साथ अटैच करना है भाई. द इलेक्ट्रोड फॉर्मिंग द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ सेल इज अलॉटेड नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, वेयर एज द इलेक्ट्रोड फॉर्मिंग द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल इज अलॉटेड अ पॉजिटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. मतलब क्या है, अगर आपने नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल से बना रही है जो इलेक्ट्रोड जो है तो इसका मतलब वो नेगेटिव वैल्यू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देगी. अगर इलेक्ट्रोड पॉजिटिव टर्मिनल बना रही है इसका मतलब पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा बिटवीन द टू टर्मिनल्स वो पोटेंशियोमीटर से मेजर होगा. द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन एन एक्सटर्नल सर्किट इज आइडेंटिफाइड यूजिंग अ गैल्वेनोमीटर. गैल्वेनोमीटर भाई एक डिवाइस होता है जिससे आप इलेक्ट्रिकल करंट को जो है वो मेजर कर सकते हो. This enables us to identify the positive and the negative terminal of the setup as the current flows from positive terminal to negative terminal. एक चीज़ का ध्यान रखिए, नेगेटिव टर्मिनल पे आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ज़्यादा रहेंगे. तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा रहेंगे तो इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल जाएंगे. लेकिन जो आपका करंट जो है वो किस तरफ जाएगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव. This in turns help us to mark the anode and cathode electrode due to the fact that electron will flow from anode to cathode always. क्योंकि एनोड पे हमेशा क्या होता है ऑक्सीडेशन, कैथोड पे हमेशा CR, छोटू राम याद रखना भी. कैथोड पे रिडक्शन तो एनोड पे ऑक्सीडेशन. तो एनोड से ही हमेशा क्या रहेंगे, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे और एनोड से इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएंगे, कैथोड की तरफ जाएंगे. सो
एज शोन इन दिस फिगर, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, ये हमारे पास भाई स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा SHE होता भी क्या है। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हम कैसे प्रोड्यूस करते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। हमें क्या करना है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को एनोड लेना है, और जो हमें जिस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकालना है तो उसके लिए हम क्या लेंगे, उसको हम कैथोड लेंगे। जैसे कॉपर है हमारे पास, कॉपर को हमने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डिप कर रखा है, एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, कैथोड पे रिडक्शन हो रहा है। सो दिस विल गिव यू द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। एक चीज का ध्यान रखें, अगर हम कभी भी पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो हम कभी भी इंडिविजुअल पोटेंशियल नहीं कैलकुलेट कर सकते। तो हम कोई ऐसी इलेक्ट्रोड लेते हैं जिस इलेक्ट्रोड को हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड मानते हैं, उसके रिस्पेक्ट में कितना पोटेंशियल हो सकता है वो हम लेते हैं। और SHE हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल है भाई वो 0.0 वोल्ट होता है, 0 वोल्ट आपके पास होता है। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हैज अ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ 0 वोल्ट। नेक्स्ट, हाउ वी कैन मेजर द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज E ऑफ सेल जो है भाई, अगर हमें कभी भी कोई एक फॉर्मूला है जो पोटेंशियल ऑफ सेल कैलकुलेट करने के लिए यूज होता है, दैट इज फॉर कैलकुलेशन ऑफ पोटेंशियल ऑफ सेल वी यूज अ फॉर्मूला, दैट फॉर्मूला इज E ऑफ कैथोड इज इक्वल टू E ऑफ एनोड। जो पोटेंशियल कैथोड का है उसमें से हम एनोड के पोटेंशियल को माइनस कर देते हैं। जैसे अगर हमारे पास एनोड और कैथोड पे जिंक और कॉपर था जो हमने डैनियल सेल देखा, ओके, तो एट द एनोड ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज Zn to Zn + 2 इलेक्ट्रॉन, जो हमने पहले देखा था भाई। तो रिडक्शन क्या है, कॉपर +2 इलेक्ट्रॉन विल गिव यू कॉपर। नेट रिएक्शन क्या रहेगा अभी, जिंक प्लस कॉपर +2, आप इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो EMF ऑफ अ सेल कैसे कैलकुलेट करते हैं, टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ ए सेल, हमारे पास जो कैथोड का पोटेंशियल है उसमें से हम एनोड के पोटेंशियल को माइनस कर देंगे। और अलग अलग इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, बाय यूजिंग दिस पर्टिकुलर सेटअप। इसमें हम SHE लगाएंगे, जैसे हमने कॉपर का पोटेंशियल निकाला वैसे ही हम जिंक का पोटेंशियल भी निकाल सकते हैं। और ऐसे पोटेंशियल निकालने के बाद हमें टोटल पोटेंशियल निकालना है सेल का, जो हमने इन दोनों को मिलकर बनाया है वो कितना रहेगा। तो आप कैथोड के पोटेंशियल को एनोड के पोटेंशियल से माइनस करेंगे तो आपके पास EMF जो है वो कितना आएगा भाई, दैट इज 1.10 वोल्ट। मेजर्ड EMF कॉपर का इतना रहता है और जिंक का इतना रहता है। ये आपको वैल्यूज गिवन होती हैं, आपने सिंपल क्या करना है, पोटेंशियल ऑफ कैथोड में से पोटेंशियल ऑफ एनोड माइनस करना है, मतलब रिडक्शन पोटेंशियल में से ऑक्सीडेशन पोटेंशियल माइनस करना है। क्योंकि कैथोड पे क्या होता है अभी, रिडक्शन होता है, और एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। नेक्स्ट इज ये पोटेंशियल सेल है भाई, हम अगर स्टैंडर्ड पोटेंशियल सेल की बात करेंगे ना वो अलग रहता है, we'll discuss in our next slides. So what is standard hydrogen electrode? Standard hydrogen electrode is consist of a platinum electrode. इसके अंदर एक प्लेटिनम वोयर होती है, ठीक है, जैसा कि इन्होंने दिखाया हुआ है। ये प्लेटिनम वोयर जो है भाई, इसको हम एक प्लेटिनम फॉयल से अटैच करते हैं जिसके ऊपर हमने प्लेटिनम ब्लैक को डिपॉजिट करा हुआ। Okay, we have a platinum electrode or platinum wire attached with a platinum foil. foil मतलब पतली सी परत है अभी प्लेटिनम की, जिसके ऊपर हमने प्लेटिनम ब्लैक को डिपॉजिट करा हुआ है और इसको हमने एक सॉल्यूशन में डिप करा हुआ है, दैट इज डाइल्यूट H2SO4। और हम इस पर्टिकुलर सेटअप में से हाइड्रोजन गैस को पास कर रहे हैं, दैट इज एट 1 bar and temperature is 298 Kelvin. So what is a standard hydrogen electrode? In standard hydrogen electrode, we use an electrode, and that electrode is platinum, which is attached with platinum foil having platinum black coated over it, okay, which is dipped in a solution of dilute H2SO4. कई बारी हम भाई इसे 1 मोलर HCl में भी डिप करते हैं, 1 मोलर HCl सॉल्यूशन भी यूज़ करते हैं, और हाइड्रोजन गैस को पास करते हैं एट 1 bar प्रेशर एंड 298 केल्विन टेम्परेचर, मतलब स्टैंडर्ड कंडीशंस पे। सो हाइड्रोजन क्या करता है, आयंस जो हैं वो एक इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं टू गिव यू हाफ ऑफ H2 गैस। ओके, सो दिस इज नोन एज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। सो देखिए इसमें जैसे मैंने बताया अभी, the electrode is immersed in an acidic solution and the pure hydrogen gas is bubbled through it.
the concentration of the reduced form and oxidation form of hydrogen is sustained at unity. Unity मतलब वन मोलर वन नॉर्मल with the following condition. प्रेशर आपका 1 बार रहेगा. कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, अगर आप HCl सॉल्यूशन यूज करते तब भी 1 मोलर, अगर आप H2SO4 यूज करते हैं तब भी 1 मोलर. नाउ E ऑफ सेल इज E ऑफ कैथोड माइनस E ऑफ एनोड. तो E ऑफ सेल इज इक्वल टू E ऑफ एनोड. आपके पास कैथोड सिर्फ रिडक्शन हो रहा है, तो आपके पास ये E ऑफ सेल E ऑफ कैथोड के इक्वल रहेगा. प्लैटिनम, अगर ये भी पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेशन होती है जिसको मैं अलग से डिस्कस करूँगा. किसी भी सेल को हम रिप्रेजेंट करते हैं तो रिप्रेजेंट करने के लिए हम सबसे पहले उसमें जो हमने इलेक्ट्रोड यूज़ करी है उसे लिखते हैं. जैसे प्लैटिनम लिख दिया, उसके बाद सिंगल बार जो है वो हमारा फेज को दिखाता है, और डबल जो यहाँ पे लाइंस है ये हमारा साल्ट ब्रीज को रिप्रेजेंट करते हैं. H2 1 बार, H आयन 1 मोलर. डबल बार आपके पास है कॉपर +2 1 मोलर. कॉपर आपका सिंगल, मतलब कॉपर को इलेक्ट्रोड को कॉपर सल्फेट में डिप करा हुआ है. जैसे मैंने अभी ये सेटअप दिखाया था आपको भी, ये वाला सेटअप. तो इसमें कॉपर को कॉपर सल्फेट में डिपॉजिट करा हुआ है. इस पे आपके पास हाइड्रोजन एट 1 बार प्रेशर जिसको आप पास कर रहे हैं. तो एनोड पे क्या है, इसमें प्लैटिनम H2 H आयन कॉपर +2 कॉपर. द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल signifies that so copper +2 can easily reduce with respect to H ion. जितनी ज़्यादा पॉजिटिव वैल्यू है इसका मतलब कॉपर +2 उतना ही इजीली रिड्यूस हो सकता है. अभी अगर हमने इसकी वैल्यू जो कैलकुलेट करी पोटेंशियल की, दैट इज 0.34 वोल्ट, इतना ही इजीली कॉपर +2 रिड्यूस हो सकता है. नेक्स्ट इज द मेजर्ड EMF ऑफ अ सेल. ऐसे ही सेम लाइन पे हम सेम जो सेटअप है उसमें कॉपर +2 की जगह हमने क्या लगाना है भाई, जिंक को जिंक सल्फेट में डिप करना है. सो नेगेटिव वैल्यू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की आती है हमारे पास जिंक के केस में. तो इसका मतलब क्या है कि हाइड्रोजन के कंपैरिजन में जिंक जो है वो इजीली ऑक्सीडाइज हो जाता है. मतलब क्या, द नेगेटिव वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सिग्निफाइंग दैट हाइड्रोजन आयन ऑक्सीडाइजिंग द जिंक. मतलब जिंक को Zn+2 में हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीडाइज कर देता है. एक इलेक्ट्रोड जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ग्रेटर देन 0 है वो अपनी रिड्यूस्ड फॉर्म में स्टेबल होती है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन गैस. whereas an electrode with negative standard electrode potential is less stable in its reduced form. अगर पोटेंशियल जो है वो पॉजिटिव है तो रिड्यूस फॉर्म में ज़्यादा स्टेबल रहेगी, अगर पोटेंशियल नेगेटिव है तो वो लेस स्टेबल रहेगी रिड्यूस फॉर्म में. This decrease the standard electrode potential, which in turn decrease the oxidizing power of a specific electrode on the left and increase the reducing power of a right of reaction. That means अगर आपके पास स्टैंडर्ड रिडक्शन, ये जो हमने कैलकुलेट करा है ना भी, ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है. और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमेशा हम स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल मेजर करते हैं. एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखें, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज द रिडक्शन पोटेंशियल. ओके, सो ये इसको ना आप जिस टाइम में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ाऊंगा उस टाइम आप इसको बेटर अंडरस्टैंड कर पाओगे. नेक्स्ट, ओके, दिस इज इनफ फॉर टुडे. नेक्स्ट वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट लेक्चर्स.